भक्तिवेदांत 25वीं जयंती के अवसर पर आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में परम आदरणीय माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे सम्मानित प्रधान हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आपकी उपस्थिति के लिए मान्यवर आपका सादर आभार। अत्यंत आदर भाव से केंद्रीय संस्कृति मंत्री माननीय श्री जी किशन रेड्डी और इस्कॉन ब्यूरो के अध्यक्ष आदरणीय श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का भी हार्दिक स्वागत है। विश्व भर से हमारे साथ लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए जुड़े भक्तगण और अतिथिगण का भी हार्दिक स्वागत है। आज संपूर्ण इस्कॉन के लिए अत्यंत गौरवशाली पल है जब माननीय प्रधानमंत्री जी के साउंड आ रहे प्रभु जी? जी प्रभु जी आ रहा है, प्रभु जी आ रहा हूं। ठीक है। मिशन भगवत गीता और अन्य प्राचीन शास्त्रों के अनुसार कृष्ण चेतना के विज्ञान की शिक्षा को जन जन तक पहुंचाकर समाज की भलाई को बढ़ावा देना है। 100 से ज्यादा देशों में विभिन्न प्रकार के समाज कल्याण के कार्यों को भी आगे बढ़ा रहा है इस्कॉन। कोरोना कालखंड में भी इस्कॉन ने आगे बढ़कर लोगों की मुश्किलें आसान करने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं। मान्यवर, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे मंगलाचरण के साथ। इस्कॉन के मायापुर पश्चिम बंगाल में स्थित वर्ल्ड हेडक्वार्टर के मल्टीनेशनल स्कूल भक्ति वेदांता वैदिक गुरुकुल के छात्र प्रस्तुत कर रहे हैं स्वस्ति वाचन। हरि ओम ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। Millennia, India served as the seat of knowledge,
It has taught countless people the righteous path of life. The life of Srila Prabhupada ji is in itself a story of dedication, devotion, determination, and courage. Today, ISKCON, the movement founded by Swamiji, is globally known for a commitment, dedication to the propagation and promotion. साउंड आ रहे माता जी? आ रहा है प्रभु जी, आ रहा है। अभी बंद हो गया। Sri Krishna problems of people and make the world was like a kutumbam. Due to the efforts of Srila Prabhupada ji and his followers, today one can see big number of people, different nationalities, wearing saris and dhotis, chanting Sanskrit mantras, reading Srimad Bhagavad Gita and other Puranas. This is indeed a cultural revolution brought about by Srila Prabhupada ji as the cultural ambassador of our great heritage and philosophy. The International Society for Krishna Consciousness today is one of the greatest cultural bridge between India and West. But Srila Prabhupada ji, with his ISKCON movement, efforts were not just limited to the foreign countries. Srila Prabhupada ji several times remarked that he had a deep desire to revive and spiritual cultural India. Along with promoting culture, ISKCON has been forefront service activity for welfare of the people. Particularly downtrodden. Even during the COVID pandemic, I had opportunity to visit Mega Kitchen at Dwaraka National Capital in Delhi, where free meals for 4 lakh needy people was being cooked and distributed. Srila Prabhupada ji is also introduced our spiritual festivals to the world, be it in the form of this Jagannath Rathayatra, which he brought to the Western world for the first time, 1969. One of these greatest achievements that he was an exemplary ambassador of India's ancient civilization. This is because of it carried the same tradition values that are now being promoted by the followers through education, culture, and welfare. Under dynamic leadership of our Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, initiative of Prime Minister Narendra Modi ji, the world celebrates yoga with us. Today, Ayurveda has become the favored alternative means of wellness. Under leadership of the Narendra Modi ji, India is regaining her cultural glory as a land of spirituality and cultural wealth. I once again welcome you all the wonderful this occasion, and make Krishna and his teachings guide through our dharma of public service and welfare. On behalf of the Ministry of Culture, I thank the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, for releasing the commemorative plan and the occasion. Hare Krishna, Jai Hind. धन्यवाद माननीय मंत्री जी। स्वामी प्रभुपाद का कहना है कि जो अपने शरीर, मन, बुद्धि और शब्दों से कृष्ण की सेवा करने का कार्य करता है, वो आत्मा इस भौतिक संसार में रहकर भी मुक्त है। ISKCON ब्यूरो के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज
स्वामी प्रभुपाद के वरिष्ठ शिष्य हैं। मैं आदरणीय श्री गोस्वामी महाराज को उनका पापा जी का 125वां एनिवर्सरी मना रहे हैं। श्री पापा कौन थे? चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी थी कि एक दिन विश्व के हर कोने में यह हरिनाम का प्रचार होगा, और इसको सफल बनाने के लिए बाबा जी प्रकट हुए थे आखिर में 1896 में। छोटी आयु में ही उनके पिता ने उन्हें हर प्रकार की शिक्षा दी थी, और छोटी आयु में ही उन्होंने संस्कृत भाषा सीखना भी शुरू कर दिया। 1922 में एक महान संत को मिले। उस वक्त प्रभुपाद जी महात्मा गांधी के फ्रीडम मूवमेंट में थे, और 1922 में मिले एक महान संत जिनका नाम था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। उन्होंने देखा कि ये बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं। उन्होंने कहा कि तुम ले जाओ इस प्राचीन भारतीय संदेश को विदेश में और अंग्रेजी देशों में इसका प्रचार करो। ये आदेश दिया था 1922 में, और प्रभुपाद जी प्रयास करते गए। अंत में 1935 में 1965 में विदेश गए केवल 40 रुपए के साथ, और उनके पास एक फ्री टिकट थी कार्गो के जहाज में। प्रयास किया था लोगों से चंदा लेने के लिए, इतने सफल नहीं हुए। तो कार्गो शिप में गए और 35 दिन का सफर था, और जब न्यूयॉर्क पहुंचे उनके मन में यही था कि हमने इस संदेश को प्रचार करना है। बड़े संघर्ष के साथ बाबा जी ने कृष्ण भक्ति का प्रचार किया, और बहुत ही संघर्ष के साथ सफलता प्राप्त हुई। उन्होंने पहला इस्कॉन का केंद्र बना था न्यूयॉर्क में 1935 में। आज विश्व के कोने कोने में आप मेरी संस्कृति का प्रभाव देखते हो। भारतीयों ने देखा तो प्रभुपाद अपने विदेशी शिष्यों के साथ आए थे। उन्होंने देखा विदेशियों को साड़ी पहनते हुए, धोती पहनते हुए, तिलक लगाते हुए। प्रभुपाद जी ने थोड़े समय में ही ग्रंथों का अनुवाद किया। उनके गुरु महाराज का आदेश था वैदिक साहित्य का अनुवाद करो, और थोड़े समय में ही भागवतम, गीता और ग्रंथों का अनुवाद किया। आज 70 करोड़ से अधिक किताबें वैदिक साहित्य के ऊपर विदेशों में पढ़ी हैं, और आज बड़े महाविद्यालय जो हैं वो भी इन ग्रंथों का लाभ उठा रहे हैं। प्रभुपाद जी ने लगभग 70 ग्रंथों का अनुवाद किया। इनका अनुवाद विश्व की हर प्रसिद्ध भाषा में हो गया। आज आप विश्व के किसी भी महाविद्यालय में जा सकते हैं तो गीता को प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी की इच्छा थी जो वैदिक संस्कृति है पूरे मानव समाज के सुधार के लिए है, और केवल हमें भारतीयों को ये नहीं सोचना चाहिए केवल भारतीयों के लिए है। और उन्होंने यथारूप वैदिक संस्कृति का प्रचार किया सारे विश्व में, और केंद्र भी खुले। बाबा जी ने फिलोसफिकल डिस्कशन के द्वारा ये स्थापित किया कि वैदिक साहित्य का उपयोग आज इस आधुनिक युग में भी हो सकता है। तो हम बड़े आभारी हैं प्रधानमंत्री जी के कि उन्होंने अपना कीमती समय दिया है इस योजना को सफल बनाने के लिए। बाबा जी इच्छा थी पूरे विश्व सुखी बने, लोगों का चरित्र हो, शांति की प्राप्ति के लिए हम प्रयास करें। ये जब हो सकता है तो हम शास्त्रों की शिक्षा का लाभ उठा, और ये जो संदेश है वे मानव समाज में, साथ में सामाजिक सेवा विभाग था। बाबा जी ने एक फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम शुरू किया था, और कहा जाता है कि ये
फूड फॉर लाइफ का प्रोग्राम तो हम लगभग विश्व के हर कोने में कर रहे हैं। ये लाखों लोग लाभ उठा रहे हैं और इसके साथ जब ऐसे सामाजिक सेवा की, ऐसे जब कोविड आया था, कोविड के कैंप खोले हर जगह समाज की सेवा के, तो भारतीय संस्कृति का लाभ हम सबको उठाना चाहिए। बाबा जी की बड़ी इच्छा थी कि भारतवासी अपनी संस्कृति को नहीं भूलें। कई विदेशी पंडित स्कॉलर भारत में आए और उन्होंने वैदिक शास्त्रों का अनुवाद किया, जो असली भाव था वो बदल दिया। प्रभुपाद ने ये लिखा है, these books are for everyone। एक बड़े फिलोसफर थे वेस्ट के, कॉक्स, उन्होंने कहा कि प्रभुपाद वाज 1 in a million, सच ए ग्रेट डिवोटी। और आज जो वैदिक संस्कृति का प्रभाव है ये बढ़ते जा रहा है। हम बड़े आभारी हैं हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस शुभ अवसर पर हमें दिया है। पिछले साल प्रधानमंत्री जी आए थे हमारे केंद्र में सबसे बड़ी गीता की स्थापना करने के लिए, तो हम आभारी हैं कि आप लोग सहयोग दे रहे हो। ये जो कॉइन आपने रिलीज करने जा रहे हो, ये 125th एनिवर्सरी का स्पेशल परवेटिव कॉइन है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया और हम फिर से आभार व्यक्त कर रहे हैं इस योजना को सफल बनाने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और भगवान आपकी सरकार को और भी शक्ति दे, वो देश को मार्गदर्शन दे सके। बहुत जरूरी है देश को मार्गदर्शन देने के लिए हमारे पास भी धार्मिक ज्ञान होना चाहिए और शासन का ज्ञान होना चाहिए, फिर हम ठीक मार्गदर्शन दे सकते हैं। और प्रजा जब इस शिक्षा का लाभ उठाएगी तब देश में शांति, विश्व में शांति आएगी। जो वैदिक साहित्य है इसमें शांति का संदेश है पूरे मानव समाज में। बहुत शुक्रिया, भगवान आप लोगों को, प्रधानमंत्री और उनकी सरकार को और भी शक्ति दे इसको मार्गदर्शन देने के लिए। हरे कृष्ण। धन्यवाद आदरणीय गोस्वामी महाराज जी। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से विनयपूर्ण आग्रह करती हूँ कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की 125वीं जयंती के अवसर पर 125 रुपए का स्मारक सिक्का जारी करें। जय जगद्गुरु शिल प्रभुपाद की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से विनम्रता पूर्वक करबद्ध आग्रह करती हूँ कि कृपया अपने प्रेरणादायक शब्दों द्वारा हमारा मार्गदर्शन करें। हरे कृष्णा। आज के इस पुण्य अवसर पर हमारे साथ जुड़ रहे देश के संस्कृति मंत्री श्रीमान जी किशन रेड्डी जी, इस्कॉन ब्यूरो के प्रेसिडेंट श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी और दुनिया के अलग अलग देशों से हमारे साथ जुड़े हुए सभी साथी कृष्ण भक्तगण। परसों श्री कृष्ण जन्माष्टमी थी और आज हम श्रील प्रभुपाद जी की 125वीं जन्म जयंती मना रहे हैं। ये ऐसा है जैसे साधना का सुख और संतोष दोनों एक साथ मिल जाए। इसी भाव को आज पूरी दुनिया में श्रील प्रभुपद स्वामी ने लाखों करोड़ों अनुयायी और लाखों करोड़ों कृष्ण भक्त
स्वाभाविक रूप से अनुभव कर रहे हैं। मैं सामने स्क्रीन पर अलग अलग देशों से आप सब साधकों को देख रहा हूं। ऐसा लग रहा है जैसे लाखों मन एक भावना से बंधे हो, लाखों शरीर एक कॉमन कॉन्शियसनेस से जुड़े हुए हो। ये वो कृष्ण कॉन्शियसनेस है जिसकी अलख प्रभुपाद स्वामी जी ने पूरी दुनिया तक पहुंचाई। साथियों, हम सब जानते हैं कि प्रभुपाद स्वामी एक अलौकिक कृष्ण भक्त तो थे ही, साथ ही वो एक महान भारत भक्त भी थे। उन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम में संघर्ष किया था। उन्होंने असहयोग आंदोलन के समर्थन में स्कॉटिश कॉलेज से अपना डिप्लोमा तक लेने से मना कर दिया था। आज ये सुखद संयोग है कि देश ऐसे महान देशभक्त का 125वां जन्मदिन एक ऐसे समय में हो रहा है जब भारत अपनी आजादी के 75 साल का पर्व अमृत महोत्सव मना रहा है। श्रील प्रभुपाद स्वामी हमेशा कहते थे कि वो दुनिया के देशों में इसलिए भ्रमण कर रहे हैं क्योंकि वो भारत की सबसे अमूल्य निधि दुनिया को देना चाहते हैं। भारत का जो ज्ञान विज्ञान है, हमारी जो जीवन संस्कृति और परंपराएं हैं, उसकी भावना रही है अथभूत दयाम प्रति, अर्थात जीव मात्र के लिए, जीव मात्र के कल्याण के लिए हमारे अनुष्ठानों का भी अंतिम मंत्र यही होता है, इदम न मम, यानी ये मेरा नहीं, ये अखिल ब्रह्मांड के लिए है, संपूर्ण सृष्टि के हित के लिए है। और इसलिए चिंतन और दर्शन को दुनिया तक ले जाएं। श्रील प्रभुपाद जी ने अपने गुरु के इस आदेश को अपना मिशन बना लिया और उनकी तपस्या का परिणाम आज दुनिया के कोने कोने में नजर आता है। अमृत महोत्सव में भारत ने भी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र के साथ ऐसे ही संकल्पों को अपनी आगे की यात्रा का आधार बनाया है। हमारे इन संकल्पों के केंद्र में, हमारे इन लक्ष्यों के मूल में भी वैश्विक कल्याण की ही भावना है और आप सभी इसके साक्षी हैं कि इन संकल्पों की पूर्ति के लिए सबका प्रयास कितना आवश्यक है। आप कल्पना कर सकते हैं, अगर प्रभुपाद जी ने अकेले विश्व को इतना कुछ दिया है, तो जब हम सब उनके आशीर्वाद से एक साथ प्रयास करेंगे तो कैसे परिणाम आएंगे। हम जरूर मानवीय चेतना के उस शिखर तक पहुंचेंगे जहां से हम विश्व में और बड़ी भूमिका निभा सके, प्रेम के संदेश को जन जन तक पहुंचा सके। साथियों, मानवता के हित में भारत दुनिया को कितना कुछ दे सकता है,
आज इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है विश्व भर में फैला हुआ हमारा योग का ज्ञान, हमारी योग की परंपरा, भारत की जो सस्टेनेबल लाइफस्टाइल है, आयुर्वेद जैसे जो विज्ञान है। हमारा संकल्प है कि इसका लाभ पूरी दुनिया को मिले। आत्मनिर्भरता के बीच इस मंत्र की श्रील प्रभुपाद अक्सर चर्चा करते थे, उसे भारत ने अपना ध्येय बनाया है और उस दिशा में देश आगे बढ़ रहा है। मैं कई बार जब आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लक्ष्यों की बात करता हूं, तो मैं अपने अधिकारियों को, बिजनेसमैन को इस्कॉन के हरे कृष्ण मूवमेंट की सफलता का उदाहरण देता हूं। हम जब भी किसी दूसरे देश में जाते हैं और वहां जब लोग हरे कृष्ण बोलकर मिलते हैं, तो हमें कितना अपनापन लगता है, कितना गौरव भी होता है। कल्पना करिए, यही अपनापन जब हमें मेक इन इंडिया प्रोडक्ट के लिए मिलेगा तो हमें कैसा लगेगा। इस्कॉन से सीखकर हम इन लक्ष्यों को भी हासिल कर सकते हैं। साथियों, भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिहि विद्यते, अर्थात ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है। ज्ञान को ये सर्वोच्चता देने के बाद उन्होंने एक और बात कही थी, मैव मन अधस्तत्व मयि बुद्धिम निवेशय, यानी ज्ञान विज्ञान को हासिल करने के बाद अपने मन को, बुद्धि को कृष्ण में लगा दो, उनकी भक्ति में समर्पित कर दो। ये विश्वास, ये बल भी एक योग है, जिसे गीता के 12वें अध्याय में भक्ति योग कहा गया है। और इस भक्ति योग का सामर्थ्य बहुत बड़ा होता है। भारत का इतिहास आज भी इसका गर्त में फंस गया था। अन्याय, अत्याचार और शोषण से पीड़ित भारत अपने ज्ञान और शक्ति पर ध्यान नहीं लगा पा रहा था। तब ये भक्ति ही थी जिसने भारत की चेतना को जीवंत रखा, भारत की पहचान को अक्षुण्ण रखा। आज विद्वान इस बात का आकलन करते हैं कि अगर भक्ति काल की सामाजिक क्रांति न होती तो भारत न जाने कहां होता, किस स्वरूप में होता। लेकिन उस कठिन समय में चैतन्य महाप्रभु जैसे संतों ने हमारे समाज को भक्ति की भावना से बांधा। उन्होंने विश्वास से आत्मविश्वास का मंत्र दिया। आस्था के भेदभाव, सामाजिक ऊंच नीच, अधिकार अनाधिकार, भक्ति ने इन सबको खत्म करके शिव और जीव के बीच एक सीधा संबंध बना दिया। साथियों, भारत के इतिहास का अध्ययन करें तो आप ये भी पाएंगे कि भक्ति की इस डोर को थामे रहने के लिए अलग अलग कालखंड में ऋषि, महर्षि और मनीषी समाज में आते रहे, अवतरित होते रहे। एक समय अगर स्वामी विवेकानंद जैसे मनीषी आए जिन्होंने वेद वेदांत को पश्चिम तक पहुंचाया, तो वहीं
विश्व को जब भक्ति योग को देने की जिम्मेदारी आई तो श्रील प्रभुपाद जी और इस्कॉन ने इस महान कार्य का बीड़ा उठाया। उन्होंने भक्ति वेदांत को दुनिया की चेतना से जोड़ने का काम किया। यह कोई साधारण काम नहीं था। उन्होंने करीब 70 साल की उस उम्र में इस्कॉन जैसा वैश्विक मिशन शुरू किया, जब लोग अपने जीवन का दायरा और सक्रियता कम करने लगते हैं। यह हमारे समाज के लिए और हर व्यक्ति के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। कई बार हम देखते हैं लोग कहने लगते हैं कि उम्र हो गई, नहीं तो बहुत कुछ करते, या फिर अभी तो सही उम्र नहीं है ये सब काम करने की। लेकिन प्रभुपाद स्वामी अपने बचपन से लेकर के पूरे जीवन तक अपने संकल्पों के लिए सक्रिय रहे। प्रभुपाद जी समुद्री जहाज से जब अमेरिका गए तो वो लगभग खाली जेब थे। उनके पास केवल गीता और श्रीमद् भागवत की पूंजी थी। रास्ते में उन्हें 2-2 बार हार्ट अटैक आया यात्रा के दरमियान। जब वो न्यूयॉर्क पहुंचे तो उनके पास खाने की व्यवस्था भी नहीं थी, रहने का तो ठिकाना ही नहीं था। लेकिन उसके अगले 11 सालों में दुनिया ने जो कुछ देखा, श्रद्धेय अटल जी के शब्दों में कहें तो अटल जी ने इनके विषय में कहा था, वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। आज दुनिया के अलग अलग देशों में सैकड़ों इस्कॉन मंदिर है। कितने ही गुरुकुल भारतीय संस्कृति को जीवंत बनाए हुए हैं। इस्कॉन ने दुनिया को बताया है कि भारत के लिए आस्था का मतलब है उमंग, उत्साह और उल्लास और मानवता पर विश्वास। आज अक्सर दुनिया के अलग अलग देशों में लोग भारतीय वेशभूषा में कीर्तन करते दिख जाते हैं। कपड़े सादे होते हैं, हाथ में ढोलक, मंजीरा जैसे वाद्य यंत्र होते हैं, हरे कृष्ण का संगीतमय कीर्तन होता है और सब एक आत्मिक शांति में झूम रहे होते हैं। लोग देखते हैं तो उन्हें यही लगता है कि शायद कोई उत्सव या आयोजन है। लेकिन हमारे यहां तो ये कीर्तन, ये आयोजन जीवन का सहज हिस्सा है। आस्था का ये उल्लासमय स्वरूप निरंतर पूरी दुनिया में लोगों को आकर्षित करता रहा है। ये आनंद आज स्ट्रेस से दबे विश्व को नई आशा दे रहा है। साथियों, गीता में भगवान कृष्ण का कथन है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समः दुःख सुख शमी। अर्थात जो जीव मात्र से प्रेम करता है, उनके लिए करुणा और प्रेम रखता है, किसी से द्वेष नहीं करता, वही भगवान को प्रिय है। यही मंत्र हजारों सालों से भारत के चिंतन का आधार रहा है और इस चिंतन को सामाजिक आधार देने का काम हमारे मंदिरों ने किया है। इस्कॉन मंदिर आज इसी सेवा परंपरा के आधुनिक केंद्र बनकर उभरे हैं। मुझे याद है जब कच्छ में भूकंप आया था तो किस तरह इस्कॉन ने लोगों की सेवा के लिए आगे बढ़कर काम किया था। जब भी देश में कोई आपदा आई है, चाहे वो उत्तराखंड की त्रासदी हो या उड़ीसा और बंगाल में साइक्लोन की तबाही, इस्कॉन ने समाज का संबल बनने का काम किया है। कोरोना महामारी में भी आप करोड़ों मरीजों, उनके परिजनों और प्रवासियों के लिए लगातार भोजन और दूसरी जरूरतों की
व्यवस्था करते आ रहे हैं। महामारी के अलावा भी लाखों गरीबों के भोजन और सेवा का अनवरत अभियान आपके माध्यम से चलता रहा है। जिस तरह से इस्कॉन ने कोविड मरीजों के लिए अस्पताल बनाए और अब वैक्सीन अभियान में भी सहभागिता निभा रहे हैं, उसकी भी जानकारी मुझे लगातार मिलती रहती है। मैं इस्कॉन को, इससे जुड़े सभी भक्तों को आपके इस सेवा यज्ञ के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज आप सत्य, सेवा और साधना के मंत्र के साथ न केवल कृष्ण सेवा कर रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया में भारतीय आदर्शों और संस्कारों के ब्रांड एम्बेसडर की भी भूमिका निभा रहे हैं। भारत का शाश्वत संस्कार है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। यही विचार इस्कॉन के जरिए आज आप सभी का, लाखों करोड़ों लोगों का संकल्प बन चुका है। ईश्वर के प्रति प्रेम और जीव मात्र में ईश्वर के दर्शन, यही इस संकल्प की सिद्धि का मार्ग है। यही मार्ग हमें विभूति योग अध्याय में भगवान ने बताया है। हमें विश्वास है कि वासुदेवः सर्वम का ये मंत्र हम अपने जीवन में भी उतारेंगे और मानव मात्र को भी इस एकता की अनुभूति कराएंगे। इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके सुवचनों के लिए हार्दिक आभार, हृदय से साधुवाद। हम माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय केंद्रीय संस्कृति मंत्री आदरणीय श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज और विश्व भर से हमारे साथ जुड़े अतिथिगण और भक्तगण का धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा विश्वनाथ मंडल प्रभु। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार आज हम लोग देखे कि पीएम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सारे विश्व में इस्कॉन के नाम पर कितना सुंदर प्रवचन किए और इसके माध्यम से इस्कॉन और भी ज्यादा प्रचार हो गया। जो लोग नहीं भी जानते थे उसको भी पता चल गया, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को तो सभी जानते हैं। हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, जैन हो, भिखारी हो, करोड़पति हो, ईर्षालु हो, झगड़ालु हो, हर कोई प्राइम मिनिस्टर को जानता है। और प्राइम मिनिस्टर इस्कॉन के बारे में इतना सुंदर बोल दिए, एक बच्चा से बूढ़ा हर कोई अब इस्कॉन और शिल प्रभुपाद के बारे में जानेंगे। और जैसे वो पैसा आएगा कॉइन, और भी ग्लोरी की बात है। तो हम लोग अपने आप को धन्य मानते कि ऐसे शिल प्रभुपाद के चरणों में हम लोग अपने आप को आत्मसमर्पण किए हैं, ऐसे श्रीमद् भागवतम के चरणों में हम लोग आत्मसमर्पण किए, है ना प्राण मोहन प्रभु।
जी प्रभु। तो आप लोग कौन कौन लाइव क्लास सुने जब मैं नारद भक्ति दर्शन का क्लास दे रहा था? वो मैं कुछ देर सुना, थोड़ा देर, अच्छा। इसलिए तो डाटा खत्म हो जाएगा आज मेरा। ओहो, अच्छा जल्दी खत्म हो जाएगा। डाटा तो 1.5 GB रहते हैं प्रभु, तो अच्छा। उस समय कुछ चले गए। प्राण मोहन प्रभु जी सुने ना पूरा? हाँ अच्छा, पूरा कुछ पहले छूट गया था। अच्छा, पहले थोड़ा छूट गया था। अच्छा, नंदा किशोरी माता जी? जी प्रभु जी, हाँ सुने। हम भी सुने, हमको तो फोन करके आप बोले सुने हैं, हाँ, बहुत अच्छा लगा। समझ पा रहे थे ना सब कुछ तत्व? वो बहुत फिलोसॉफिकल क्लास था। और जी प्रभु जी। राकेश कुमार प्रभु, आप भी श्रवण किए थे? नहीं प्रभु जी, नहीं कर पाए। और नहीं कर पाए? मैसेज तो मिला था ना, लिंक तो मिल। हाँ लिंक मिल गया था ना? हाँ लिंक तो मिल गया। पहले नंद किशोरी माता जी मुझे फोन किया था प्रभु, जो लिंक नहीं मिल रहा है। उसके अच्छा। बाद मैंने जब खुला तब लिंक मिला, माता जी को भी लिंक मिल गया, मतलब उसके बाद वो भी देख पाए। अच्छा, और भी 4 दिन चलेगा ऐसे? तो आज डाटा पूरा खत्म हो जाएगा प्रभु विश्वनाथ प्रभु? हाँ प्रभु, डाटा खत्म हो जाएगा पूरा। अब कितना देर तक चलता है देखता हूँ, डाटा खत्म हो जाएगा अभी अभी, क्योंकि ना उसमें से चले गए डाटा। हाँ। 1 घंटा का। तो आज हम लोग 100 लोग पाठ करेंगे क्या? फिर भी उसमें जो भक्ति योग का बात सुने ना, वो तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सुना। ये तो हमको पता भी नहीं था। उसमें जो आप बता रहा था ना, ये भक्ति योग का बात में, ये भक्ति ही है, भक्ति कैसे आएंगे, ये सब बात बता रहा था, तो अच्छा लग रहा था। इसलिए मैं बंद कर नहीं पाया, इसलिए चलते ही रहा वो। अच्छा, तो 1 श्लोक हम लोग पाठ करते हैं क्या? नहीं, फिर काल के लिए आप तैयार हुए ना? काल का उधर का क्लास का आप चिंता मत कीजिए, वो क्लास मेरा 5 दिन का क्लास हम रेडी कर लेंगे। रेडी करके रखे हैं, वाह ठीक है, फिर बहुत अच्छा है। जब कहीं पर जाते हैं ना, तो 20 दिन आगे ही मैं ट्रेन टिकट करता हूँ। और जो अगर मान लीजिए मेरा 5 बजे ट्रेन है, 5 बजे हावड़ा स्टेशन में ट्रेन है, तो दिन के 10 बजे मैं पहुंच जाता हूँ। मैं हर चीज में एडवांस करता हूँ। ये मैं सीखा हूँ हमारे राकेश कुमार प्रभु से, रांची। वो जब कहीं पर दवाई देने जाते थे ना, तो पहले से ही पूरा प्रभु जी प्लान कर लेते हैं, कल गिरिडीह जाना है या गढ़वा जाना है या कडोरमा जाना है। तो कुछ कुछ चीज जो है ना, सभी भक्तों से कुछ कुछ मिलता है। तो अच्छा, जो नारद भक्ति सूत्र का जो क्लास दी है, उनमें से कुछ स्मरण है क्या? थोड़ा ओवरव्यू प्रदान करेंगे, उसके बाद हम लोग क्लास को चालू करेंगे। नहीं प्रभु, इतना कर नहीं पाएंगे, वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि ना वो पहले बार ही हम लोग कैसे सुने हैं। अच्छा। ये जो नारद भक्ति ये है ना, इसका ये भी पढ़ना चाहिए हम लोगों को। नारद भक्ति सूत्रों का जो है ना, ये इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा दूसरा टाइप का मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा था जो पूरा फिलोसॉफी है, पूरा फिलोसॉफी। हाँ, तो फिर उसको कुछ नोट भी नहीं किया, 1-2 पॉइंट नोट करते तो उसको तो इलेबोरेट कर पाते थे। हाँ। कुछ भी नोट नहीं किया, सिर्फ सुन ही रहा था, और सुनने में इतना मग्न हो गया था जो, और उसको छोड़ नहीं रहा था। ठीक है, कोई बात मन नहीं कर रहा था। पूरा पहले से ही सुनना है। राकेश कुमार रांची प्रभु, आप भी उसको सुनना है। हाँ, इसको मायापुर टेलीविजन में जो है ना, लिंक जो दिया है उसमें लक्ष्मी माता जी भेजी है, मई वाइफ, तो उन्होंने जो शेयर किए हैं, तो उसको सुनना है राकेश कुमार प्रभु। हाँ, 5 दिन का सेमिनार है।
तो चलिए हम लोग एक श्लोक आज पाठ करते हैं ना। लेकिन प्रभु ये जो है, ये भक्ति योग का, ये हाँ। जो नारद भक्ति जो इसमें जो डिस्कशन आपने किए हैं ना, ये हाँ। तो सबसे अच्छा है। मैं दिख रहा था ये भक्ति योग, ये ज्ञान प्राप्त होना चाहिए सबको। हाँ। इसका जो भक्ति हम कैसे करेंगे, वो भगवत भक्ति की कैसे क्या क्या बोलते, कैसा ये भक्ति किया जाता है, शुद्ध भक्त कैसे बनेंगे, शुद्ध भक्त ना होने से क्या होता है, ये सब आपने जो बता रहा था, संक्षेप में बता रहा था, लेकिन वो बहुत अच्छा ही लग रहा था। ये यही है भक्ति। मैं तो बता रहा हूँ ना, आप तो थोड़ा 16 माला जप कर दिया क्या हमारा भक्ति हो गया, वो नहीं है। हमारा मन को तैयार करना है कैसे, वो उसमें आज थोड़ा सा, आज पहले दिन में थोड़ा सा ऐसा ही ज्ञान प्राप्त हुआ। आज पहले दिन में हम ना तो सोचते हैं 16 माला जप कर लिया तो बाबा कितना बड़ा हो गया हम लोग, नहीं है। 16 माला जप करने से वो ठीक है, वो एक ये थोड़ा सा एक कनिका मिलता है उसमें। हाँ। माला जप करना बोले तो एकाग्रता बढ़ाना है, लेकिन भक्ति जो है, ऐसे भक्ति प्राप्त करने के लिए और दूसरा रास्ता जो बताया था वो करना चाहिए हम लोगों को। अच्छा, हरे कृष्ण प्रभु। ठीक है प्रभु। अच्छा, नंद किशोरी माता जी, श्लोक संख्या कितना होगा माता? 32 होगा प्रभु, 32। अच्छा, 32 ना। भगवते कल पढ़ा रहे थे तो कंप्यूटर जो था सो डिस्टर्ब कर रहा था। अच्छा। प्रथम स्कंद 3 अध्याय का 32 नंबर श्लोक होगा। 31 हो गया, 31 के बाद एक दिन चैतन्य चरितामृत हुआ। हाँ, ठीक बोले। 31 के बाद एक दिन चैतन्य चरितामृत हुआ। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नित्यं भागवतं सेवया। भगवतीरुत्तम श्लोके भगवतीरुत्तम श्लोके भक्ति भवति नष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिके। अतः परं यदव्यक्तम् अतः परम् परम अव्यक्तम् व्यूढगुणबृंहितम् व्यूढगुणबृंहितम् अदृष्टाश्रुतवस्तुत्वात् अदृष्टश्रुतवस्तुत्वात् स जीवो यत्पुनर्भवा। सजीवो यत् पुनर्भवा। पढ़िए। अतः परम यत् अव्यक्तम् अतः परम् अव्यक्तम्
आवूढ़ा गुणावृंहितम् आऊढः गुणः बृहितम् अदृष्टा श्रुता वस्तुतात् अदृश्याय श्रुत वस्तुता स जीव जात पुनर्भव सह जीवा वक्त पुनर्भव हरे कृष्ण। अतः पर्य अवित्यम् अतः परम अव्यक्तम् आउर्य गृहीतम् आवूढ़ा गुणावृंहितम् अदृष्टा श्रुता वस्तुता अदृष्टा अश्रुता वस्तुतः सह जीवो यत् अत्य पुनर्भवः जीवो जात पुनर्भव। हरे कृष्ण। अतः परम यत अव्यक्तम् अतः परम अव्यक्तम् आयूढ़ गुणं बृहतम् गुणाबृहतम् अष्टम अश्रुतवस्तुत्वात् दृश्यं श्रुत्वा वस्तुत्वा सह जीवा पुनः धव सह जीवा पुनर्भवः। राकेश कुमार प्रभु अनुवाद पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्णा प्रभु जी। रूप की इस स्थूल अवधारणा से परे रूप की एक अन्य सूक्ष्म धारण है जिसका कोई आकार नहीं होता है और जो अनदेखा अनसुना तथा अव्यक्त होता है। जीव का इस रूप इस सुष्टता से परे है, अन्यथा इसे बारंबार जन्म न लेना पड़ता। तात्पर्य, जिस प्रकार यह स्थूल दृश्य जगत का विचार भगवान के विराट शरीर के रूप में किया जाता है, उसी प्रकार इसके सूक्ष्म शरीर की भी धारणा है जिसे न तो देखा जा सकता है, न सुना या प्रकट किया जा सकता है। लेकिन किंतु शरीर की यह समस्त स्थूल या सूक्ष्म अवधारणाएं जीवों से संबंधित होती है। जीव का अपना आध्यात्मिक रूप होता है जो इस स्थूल भौतिक या सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक अस्तित्व से परे होता है। जेभी जी इस दृश्य स्थूल शरीर का त्याग देता है, तेभी स्थूल शरीर तथा मनोवैज्ञानिक क्रियाएं करना बंद कर देती है। वस्तुतः हम कहते हैं कि जीव चला गया, क्योंकि वह न तो दिखता है न सुनाई देता है। यहाँ तक कि जब जीव प्रगाढ़ निद्रा में होता है तब स्थूल शरीर कार्य नहीं करता होता। तो हम यह जानते हैं कि सांस लेने के कारण वह शरीर के भीतर है। अतएव जीव के देह से चले जाने अर्थात मरने का अर्थ कदापि नहीं होता। जीवात्मा का अस्तित्व ही नहीं है, वह यही होता है, अन्यथा पुनः जन्म क्यों होता। निष्कर्ष ऊपर चला गया प्रभु जी। हाँ, निष्कर्ष यह निकलता है कि भगवान अपने दिव्य रूप में नित्य विद्यमान रहते हैं, जो जीव के समान न तो स्थूल है न सूक्ष्म है, जिनके शरीर की तुलना कभी भी जीव के स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों से नहीं की जा सकती। ईश्वर के शरीर की ऐसी सारी भावधारणाएं काल्पनिक है। जीव का अपना सनातन आध्यात्मिक रूप होता है जो उसके भौतिक कलमश के कारण ही वृद्ध रहता है, बद्ध रहता है। तो इस प्रकार हम लोग लगभग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के तृतीय अध्याय को, जो कि भगवान श्री कृष्ण के जितने सारे अवतार हैं
अवतार का उल्लेख है वो हम लोग श्रवण करते आ रहे हैं। तो एक दिन हम लोग जो कल डिस्कस किए थे, जो ओवरव्यू में हमारे विश्वनाथ प्रभु जी बताए थे कि भगवान के बहुत अवतार हैं, जो शास्त्रों में सबका उल्लेख नहीं है। कुछ कुछ का उल्लेख है जो हमारे भक्ति जीवन में, जिनकी लीला श्रवण करके हम लोगों को भक्ति मिलेगा, वो सब कुछ कुछ उल्लेख है। तो भगवान के अनंत अवतार है, जो उदाहरण दिया गया था कि मच्छर अवतार भी है, चिंटी अवतार भी है, कानखुजरा अवतार भी है, क्योंकि जितने सारे जीव है उतने ही वो अवतार है, प्रभुपाद तात्पर्य में लिखे। लेकिन हमारे भागवतम में कितने अवतार का उल्लेख है? 24 अवतार का। तो 24 अवतार के अंत में व्यासदेव अर्थात सुद गोस्वामी नैमिषारण्य के तट में क्या अवतार है कि एते चांसी कला पुंस कृष्णस्तु भगवान से, मतलब ये जितने सारे अवतार है ये कौन है? या तो कला या तो अंश। अंश के अंश को कला कहते हैं, कृष्ण के अंश के अंश को कला कहते हैं। या तो अंश है या तो कला है, मतलब अंश के अंश। तो इतने सारे अवतार जो है, लेकिन कृष्ण जो है ना स्वयं अवतारी है, जो अवतार है। तो इस प्रकार हम लोग देखें तो उसके बाद सुद गोस्वामी क्या अवतार है? भगवान के इतने सुंदर सुंदर अवतार होने के बावजूद भी कोई कोई निराकार की पूजा करते हैं, कोई कोई विराट रूप की पूजा करते हैं। तो क्यों विराट रूप की पूजा करते हैं? क्योंकि नवदीक्षित है, नया भक्त है, कुछ तो समझ में नहीं आएगा तुरंत कृष्ण का रूप, इसीलिए विराट रूप, विश्व रूप, ये सब का धारणा, ये सब का कॉन्सेप्शन है, ताकि उनको भगवत संबंधी कुछ आइडिया हो जाए कि भगवान ऐसे होता है। तो उसी प्रकार आज का जो हमारा श्लोक है 32 नंबर श्लोक में वही चीज बता रहे कि अत परम जदव्यक्तम व्यूढ़ गुण बृंहितम अदृष्ट श्रुत वस्तु सजीव जत पुनर्भव, अर्थात कि रूप की स्थूल अवधारणा से परे। स्थूल अवधारणा मतलब क्या है? स्थूल मतलब हम लोग जानते हैं, स्थूल मतलब पृथ्वी जल पावक गगन समीरा, जल वायु पृथ्वी अग्नि और आकाश। और सूक्ष्म मतलब मन बुद्धि अहंकार। हमारे दो शरीर है, एक शरीर क्या है? एक शरीर है सूक्ष्म, एक है स्थूल, और उसके परे है आत्मा, हमारी आत्मा। तो स्थूल की सूक्ष्म धारणा से परे रूप की एक अन्य सूक्ष्म धारणा है जिसका कोई आकार नहीं होता और जो अनदेखा, अनसुना तथा अव्यक्त होता। तो जीव का रूप इस सूक्ष्मता से परे है, अन्यथा उसे बारंबार जन्म न लेना पड़ता। तो इस श्लोक में क्या बताया जा रहा है? हम लोग विराट रूप का डिस्कशन किए थे, याद है सबको? विराट रूप अर्थात पहाड़ पर्वत भगवान की हड्डी, नदी नाला भगवान की नसें, धमनी, सूर्य चंद्र भगवान की आंखें, तो यह है विराट रूप। तो जिस प्रकार हमारा एक स्थूल शरीर है, क्या है? ये जो हाथ है, पांव है, चेहरा है, ये स्थूल शरीर है जो किस चीज से बना हुआ है? जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि और आकाश। लेकिन इसके परे और एक शरीर है हमारा। वो शरीर क्या है? सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म शरीर किस किस चीज से बना हुआ है? मन, बुद्धि और अहंकार से। आवाज आ रही है प्रभु? अहंकार सब सूक्ष्म है, सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म शरीर जो है ना, प्रभु जी का आवाज नहीं आ रहा है, इसलिए प्रभु जी पूछ रहे हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। फिर आ रहे हैं। हाँ, भक्तगण मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? हाँ ये हाँ प्रभु जी। हाँ ठीक है। तो विषय वस्तु डिस्कस कर रहे थे कि जैसे हमारा दो रूप है ना, वो एक आत्मा है, एक स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है और आत्मा है। ठीक है?
ये तो राकेश प्रभु जी लैपटॉप बनाना आता है, मेरा भी बना। चार्ज जो चार्ज देख रहे थे कुछ। तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, जैसे हमारे दो शरीर है। पहला क्या है, स्थूल शरीर। स्थूल शरीर में क्या क्या 5 तत्व है, डिस्कस किए 2 मिनट पहले। उसके बाद एक है शरीर, सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर में 3 चीजें, मन, बुद्धि और अहंकार। और उसके मन, बुद्धि, अहंकार। इससे परे क्या है, आत्मा। उसी प्रकार आत्मा ऐसे रूप है, आत्मा भगवान के भी ऐसे। पहला क्या है, विराट रूप, जो स्थूल माना जाता है। दूसरा है सूक्ष्म रूप, जो निराकार स्वरूप है। और तीसरा है आत्म रूप, वो है कृष्ण, रामचंद्र, नृसिंहदेव, वराहदेव। समझ विश्वनाथ प्रभु? हाँ प्रभु। हाँ, तो वही चीज यहाँ पे शुद्ध गोस्वामी में उल्लेख करते। तो शिल प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखे हैं हम लोग थोड़ा सा समझेंगे, कि बता रहे कि जिस प्रकार स्थूल दृश्य जगत का विचार भगवान के विराट शरीर के रूप में किया जाता है, उसी प्रकार उनके सूक्ष्म शरीर की भी धारणा, जिसे ना तो देखा जा सकता है, न सुना या प्रकट किया जा सकता, लेकिन वस्तुतः शरीर की ये समस्त स्थूल या सूक्ष्म अवधारणाएं जीवों से संबंधित होती है। जीव का अपना आध्यात्मिक रूप होता है, जो इस स्थूल मनोविज्ञान स्थिति से परे होता है। तो जैसे हमारी आत्मा जो है ना, जैसे हमारा 2 शरीर काम करता है, हम सबको पता। जब हम लोग रात में सो जाते हैं तो उस समय हमारा स्थूल शरीर पड़ा रहता है, लेकिन हम लोग सूक्ष्म शरीर में कभी इस्कॉन मायापुर जाते हैं, तो कभी जमुना नदी जाते हैं, तो कभी हिमालय की चोटी से गिर जाते हैं, तो कभी बाघ हम लोग को खाते हैं, या कभी पहाड़ से गिरते हैं। तो सूक्ष्म शरीर जो है ना, वो अपना कार्य करते हैं जब हम लोग सो जाते हैं। और अभी जो है ना, जागृत अवस्था में अभी हमारा स्थूल शरीर काम कर रहा है, अभी सूक्ष्म शरीर सोया हुआ है। तो 2 शरीर जो है ना, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। लेकिन इससे परे जो चीज है वो है आत्मा, जो जीव का असली रूप है। और वही रूप कृष्ण की भक्ति कर सकता है। ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर से भक्ति नहीं होता, ये सब एक प्रैक्टिस। असली भक्ति उस आत्मा से होता है। इसीलिए आज के नारद भक्ति सूत्र के सेमिनार में मैं वही चीज बारंबार बोल, कि जब तक आध्यात्मिक स्तर में नहीं आता, तब तक उसका भक्ति जीवन शुरू नहीं होता। तो एनीवे, तो हमारा जो मूल विषय वस्तु है कि भगवान का 3 चीज जो है ना, विराट रूप लोग समझ गए, नदी नाला पहाड़ पर्वत सागर गंगा। और इस सूक्ष्म शरीर में निराकार, भगवान का निराकार अव्यक्त स्वरूप। अव्यक्त में क्या है, जैसे विश्वनाथ प्रभु जी के ऊपर जो पंखा चल रहा है, उसमें भी भगवान है। अंडांतरस्तु परमाणु चयंतरस्तम, सर्वव्यापी भगवान। ये जो मेरा हाथ दिख रहा है, ये घुमा रहे हाथ, इसमें भी भगवान है कहीं ना कहीं। उदाहरण स्वरूप जो हम लोग बहुत दिन पहले दिए थे, टीवी जो है ना, टीवी, न्यू दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर प्रभुपाद की ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, और हम लोग जैसे केबल लगा देते हैं। हम लोग जैसे केबल लगा देते हैं, एंटीना वहीं पर, बूस्टर एंटीना, डिश टीवी लगा देते, वहां पर दिखता है नॉर्मल। तो वहां भी है, रांची में हमारे राकेश प्रभु जी वो भी लगाएंगे, तो वहां भी है। नंद किशोरी माता जी वहां भी लगाएंगे, तो वहां भी वही। सर्वव्यापी अगर साधारण जीव अगर ऐसा है, तो परम पुरुषोत्तम भगवान के लिए क्या कहा जा सकता है? तो इसे कहा जाता है सर्वव्यापी। तो 2 रूप है, पहला रूप विराट रूप, द्वितीय है सूक्ष्म रूप निराकार, और चौथा है भगवान श्री कृष्ण। तो जीव का अपना आध्यात्मिक रूप होता है जो स्थूल। तो जो ही जीव इस दृश्य स्थूल शरीर को त्याग देता है, त्यों ही स्थूल शरीर तथा मनोवैज्ञानिक क्रियाएं बंद कर देती है। वस्तुतः हम कहते हैं कि जीव चला गया, क्योंकि वह न तो दिखता है, नहीं सुनाई देता है। यहां तक कि जब जीव प्रगाढ़ निद्रा में होता है, तब स्थूल शरीर कार्य नहीं करता होता।
तो हम ये जानते हैं कि श्वास लेने के कारण वो शरीर के भीतर है। अतएव जीव के देह से चले जाने मरने के अर्थ ये कदापि नहीं होता कि जीवात्मा का अस्तित्व है ही नहीं, वही होता है अन्यथा पुनः जन्म क्यों नहीं। मतलब कि जीव जो है ना, जीवात्मा जो है ना, वो चिन्मय है, दिव्य है, उसको मारा नहीं जा सकता। लेकिन ये जो शरीर है ये अपने समय के अनुसार मरेगा। जन्म लिया है, इसका मृत्यु भी निश्चित है। किंतु आत्मा वो कभी नहीं मरता, क्योंकि अगर वो मरता तो फिर जन्म कैसे लेता। प्रभुपाद यहाँ पे तात्पर्य व्याख्या कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग तो अगर अच्छा कर्म करेंगे तब तो हम लोग भगवत धाम में जाएंगे ना, और बुरा कर्म करेंगे तो अगले जीवन में कुत्ता बनेंगे। ये फिलोसॉफी है। तो आत्मा अगर नहीं रहेगा तो जन्म कैसे लेंगे। तो इसका अर्थ है कि आत्मा का कभी मृत्यु नहीं होता, आत्मा अमर है। तो इसीलिए हम लोग को मरने से नहीं डरना चाहिए। मरने से कौन डरता है? जिसका धारणा यह है कि मैं मरूंगा। लेकिन जिसको पता है कि मैं मरूंगा नहीं, क्योंकि आत्मा कभी मरता नहीं, तो डर कैसे, है ना नंद किशोरी माता जी? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है ना माता? जी प्रभु जी। तो जी जी जी, ठीक है, मरना तो निश्चित है। हाँ निश्चित है। कौन सा निश्चित है? शरीर का मरना निश्चित है, लेकिन आत्मा कभी, शरीर का मरना जी, आत्मा तो कभी नहीं मरता है। तो हम शरीर है या आत्मा है? नहीं, हम तो आत्मा है प्रभु जी, शरीर नहीं है, आत्मा है। तो हम आत्मा है, इसका मतलब हम लोग अमर है जी। अमर जी, अमर है, आत्मा अमर है। शरीर के नाश हो जाएगा, आत्मा के नाश नहीं होगा। आत्मा तो निकल के चले जाएंगे तो आत्मा अमर है, भगवत धाम के। ठीक है ना, आत्मा अमर है। नहीं, आत्मा अमर है, आत्मा प्रभु जी, आत्मा अमर है। आत्मा अमर है तो आप कौन है? आप आत्मा है या शरीर है? हु आर यू? आत्मा है, शरीर नहीं है, आत्मा है। आत्मा है तो आप क्या मरेंगे? ये संभव है? नहीं नहीं, आत्मा नहीं, मेरा शरीर मर जाएगा, आत्मा नहीं मरेगा। मैं शरीर की बात नहीं कर या रहा, शरीर के बारे में मेरा की बात कर रहे, मेरे शरीर का नहीं, मेरा। मेरा मरेगा या मेरा शरीर? जी शरीर मरेगा, आप मेरा नहीं, शरीर मरेगा। तो मेरा मतलब आप अमर है, आपकी शरीर अमर नहीं है, ठीक है जी। इसके बाद बता रहे हैं कि निष्कर्ष क्या निकला कि भगवान अपने दिव्य रूप में नित्य विद्यमान रहते हैं, जो जीव के समान न तो स्थूल है न सूक्ष्म है। उनके शरीर की तुलना कभी भी जीव के स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों से नहीं की जाती। ईश्वर के शरीर की ऐसी सारी अवधारणाएं काल्पनिक है। जीव का अपना सनातन आध्यात्मिक रूप होता है, जो उसके भौतिक कर्म के कारण ही बद्ध रहता है। तो हम सबका भी सनातन रूप है। सनातन मतलब जैसे भगवान कृष्ण का अपना रूप है, भगवान कृष्ण का अपना सनातन रूप है। भगवान कृष्ण को कभी बद्ध नहीं बनना पड़ता, कभी बद्ध आत्मा, कभी स्थूल शरीर, कभी सूक्ष्म शरीर। भगवान कृष्ण को ऐसा नहीं लेना पड़ता है। सूक्ष्म शरीर, बद्ध शरीर हम सबको लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारी कुछ इंद्रिय तृप्ति की इच्छा होती है। लेकिन भगवान तो आत्मा राम है, अब तक काम है, उनका इच्छा कैसे रहेगा? इच्छा किसका है? जिसके पास में मुझे भी जलेबी खाने को मन करेगा। तो मेरी इच्छा है तो तृप्ति चाहिए, तो मुझे जाना पड़ेगा जोगपीठ से गरम गरम जलेबी लेके आना है। लेकिन भगवान को क्या इच्छा है? भगवान की बस तो सब कुछ है। अगर साधारण कामधेनु गाय सहस्र अर्जुन के पुत्रों को अगर उतना सुंदर प्रसाद खिला सकते हैं, तो भगवान के धाम में तो कंदर्प कोटि कमनीय या चिंतामणि प्रकट सद्मसु कल्प वृक्ष है। जो चाहेंगे वही मिलेगा। आम का पेड़ है, जाम खाएंगे तो मिलेगा, अंगूर चाहेंगे तो मिलेगा। कल्प वृक्ष में सब कुछ मिलता है। बोलेंगे मुझे घी देके पाए घी वाला परोठा खाना है आलू दम के साथ, मिल जाएगा। कल्प वृक्ष में सब कुछ मिलता है। तो कल्प वृक्ष तो कृष्ण का क्या कोई इच्छा रहेगा? बद्ध आत्मा हम सब की कुछ कुछ इच्छा होती है, हम लोग को यहाँ पे आना पड़ता है।
हरे कृष्ण प्रभु। लेकिन हाँ सहस्त्र अर्जुन जब उसी गाभी को चुरा मतलब जबरदस्ती ले गया, उसको कुछ नहीं मिला, तो हाँ वो है भक्ति से ना तो मिलेगा नहीं। तो हाँ, दिस इज ए गुड पॉइंट। भक्ति अगर सहस्त्र रहेगा तो मिलेगा। तभी वो मिलेगा। हाँ कल्प वृक्ष कल्पतरु तभी देते हैं जब उसको भक्ति करेंगे, क्योंकि ना यस वो उसका उदाहरण सहस्त्र अर्जुन उसका जबरदस्ती लेके गया, हाँ तो क्या मिला उसको? कुछ नहीं मिला। उधर जाके वो कुछ बोल नहीं रहा है मिला। नहीं ये हमको दूसरा का भी दे दिया, ये नहीं है, ये वाला वो हाँ नहीं है। तो वो है, तो हम मनुष्य को तो वो सोचना है, हम करना है। भक्ति ना करने से वो थोड़ी देते हैं। हाँ, उसको भक्ति से उसी गाय से वो मांगते, भक्ति से उसको ले जाते, भक्ति मिलता है उसको, तो वहां से उसका घर में गाय कहीं भी जगह पे रहे उसका घर में वो मिल जाता था उसको। तो वो है। ठीक है, बहुत हरे सुंदर। कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। तो हम लोग अल्टीमेटली आज के श्लोक के माध्यम से एक ही चीज समझे कि कृष्ण जो है ना, उसको इच्छा पूर्ति के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन हम सब जो है ना, इच्छा के लिए हम लोग को दूसरे के पास गिड़गिड़ाना पड़ता है। एक गरम गरम 2 पीस जिलापी छाप दो तो मैं खाऊंगा, किंतु कृष्ण का जरूरत नहीं पड़ता। तो यही है डिफरेंस। तो अल्टीमेटली हम लोग विश्वनाथ मंडल प्रभु जी का जो कंक्लूजन है कि गाय जो 56 भोग देता है, तो भक्ति अगर नहीं रहेगा तो देने वाला गाय भी नहीं देगा। है ना? जो देता है नहीं मिलेगा। वो देने वाला गाय भी नहीं देगा। अर्थात इससे हम लोग को तात्पर्य क्या लेना है? मान लीजिए हमारे पास करोड़ों रुपया है, जी भर कर खाएंगे पिएंगे, लेकिन हो गया शुगर, क्या करेंगे? क्या करेंगे बताइए? वही चाय और गाय भी देती है भगवान की कृपा से प्रभु। हाँ गाय भी भगवान की कृपा से ही देती है। हाँ। तो उसी प्रकार अल्टीमेटली हम लोग एक चीज देखते कि भगवान की इच्छा के बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते। कि इंद्रिय अगर करना है तो भी भगवान का परमिशन चाहिए। जैसे हम लोग समुद्र मंथन लीला के माध्यम से इस चीज को समझे कि वो लोग अमृत पीना चाह रहे हैं, तो भगवान पहले कौन सा रूप धारण किया? पहले रूप धारण किया कच्छप का, जिसे जहां पर पहाड़ को रखेंगे। उसके बाद उसको मथने के लिए रस्सी कहां से लाएंगे? लाइलन दौड़ी, लाइलन रस्सी कहां से लाएंगे? उस समय तो कोई टाटा मोटर्स या टाटा स्टील या कोई ऐसा फैक्ट्री नहीं था, कितना मोटा रस्सी लाएंगे पहाड़ को ये करने के लिए। तो भगवान फिर से नया रूप धारण किया वासुकी। उसके बाद अभी पिलाना है, राक्षस लोग छीन के ले जा रहे, भगवान फिर अवतार लिया मोहिनी। समुद्र से जो उठाया अमृत को, भगवान फिर अवतार लिया धन्वंतरी। तो इंद्रिय तृप्ति करना चाह रहे देवतागण, लेकिन उसके लिए इंद्रिय तृप्ति के लिए भगवान 4 बार अवतार लिए। थोड़ा सा अमृत पाने के लिए भगवान 4 बार अवतार लिए, तब देवताओं को अमृत मिला। इसी प्रकार हम लोगों को इस घटना के माध्यम से एक चीज सीखना है कि हम लोग इंद्रिय तृप्ति करें या भक्ति का साधन करें, अरेंजमेंट कृष्ण करता है। इसका अरेंजमेंट है ना, भगवान श्री कृष्ण करता है। अगर बोलेंगे मैं शादी करूंगा, मेरे पिता के पास बहुत धन है, लड़की ही नहीं मिलेगी, क्या करेंगे? लड़की नहीं मिलेंगे। आपके पास करोड़ों या अरबों संपत्ति रहे, लेकिन कृष्ण की कृपा हो, आपका माँ भीख मांगते हैं लेकिन फिर भी आपको लड़की मिल जाए, ये संभव है। कृष्ण की कृपा सब कुछ हो सकता है। हम लोग एक चीज आज के कथा का, जो हमारे प्रभु जी बहुत सुंदर कामधेनु के विषय में इतना सुंदर बताए, ये तो मुझे भी अच्छा लगा। सहस्रार्जुन ले गया था लेकिन उपभोग नहीं कर पाया क्योंकि भक्ति नहीं था। तो कुछ भी किया जाए बिना भक्ति के, हमारे पास बैंक में करोड़ों पड़ा रहे, अगर भक्ति रहेगा तो सबका उपभोग कर पाएंगे। भक्ति नहीं रहेगा तो कुछ ना कुछ ऐसा हादसा हो जाएगा,
कुछ काम का नहीं। इसलिए भक्ति इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भक्ति रहने से सब कुछ रहेगा, भक्ति नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं रहेगा, है ना। तो चलिए इस प्रकार हम लोग आज की कथा को यहीं पर विराम देंगे। किसी भक्त का अगर कुछ प्रश्न है क्या प्रभु? अब नहीं प्रभु। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो दीक्षा है क्या प्रभु? दीक्षा नाती पोता के साथ प्रभु जी खेलते हैं। चलिए जन के वृद्धावस्था में भक्ति तो मिला, मैं तो नाती पोता के साथ ही जीवन। चलिए तो प्रभु जी जो बाकी आपका नारद भक्ति सूत्र का था उसको पूरा कीजिए जहां से नहीं सुने हैं, ठीक है विश्वनाथ प्रभु। हाँ। और आज की कथा को हम लोग यहीं पर विराम देंगे। अभी तो आप मंदिर जाएंगे ना? हाँ। अच्छा ठीक है, जैसे समय नहीं, मिलेगा। आज मंदिर नहीं जाएंगे प्रभु। अब मुझे कल दूसरा एक जगह जाना है जो यहाँ से 7 किलोमीटर दूर। अच्छा कहाँ पर? बांकुड़ा जाएंगे, सिटी में, बांकुड़ा टाउन में जाना है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए जो भी है बहुत सुंदर। कल तो कितने बजे आएंगे रिटर्न? जल्दी जल्दी जाएंगे तो आके आपका वो सुन पाएंगे तो अच्छा है, देखेंगे 1-1:30 बजे का अंदर वापिस आ जाए तो अच्छा है। मतलब सुबह 8 बजे निकल जाएंगे। ये प्रभु जी पाकुड़ा, प्रभु जी पाकुड़ा झारखंड में है? विश्वनाथ प्रभु जहाँ नहीं, बांकुड़ा बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में है। ओ बंगाल झारखंड का बॉर्डर है, पुरुलिया के आगे। अच्छा झारखंड का बॉर्डर। हाँ झारखंड का बांकुड़ा में, बांकुड़ा का साथ भी झारखंड का बॉर्डर है। जो ये हमारा टाटा नगर का बाजू में इधर जो है ना, वो बंगाल का भी है, बांकुड़ा के भी है। तीनों डिस्ट्रिक्ट एक ही जगह पे है, बांकुड़ा, पुरुलिया और वो झारखंड। ये है ऐसा। जी 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 ठीक है, ठीक है। तो सभी भक्तगण हम लोग अनम्यूट हो जाके वांछा कर को तुरंत करू करेंगे, क्योंकि वैष्णव सब कुछ होता है, भक्ति भी भगवान को प्राप्त करना। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम 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 हरे हरे। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। प्रधानमंत्री द्वारा श्रील प्रभुपाद का 125 रुपया 125 रुपया उद्घाटन की 125 रुपया। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।